Namaskar, everyone. A very warm welcome to all the distinguished guests, respected speakers, fellow academicians, and participants who have joined us from across the country for this 1 week online workshop on research refined tools, techniques, and thinking. I am Dr. Astha Saxena, Associate Professor, Department of Journalism and Mass Communication at Purnima University, Jaipur, President of the Writers Reservoir, and Assistant Editor of Communication Today Journal. It is my honor and privilege to begin today's inaugural session. This workshop is being organized by Communication Today Quarterly Media Journal Jaipur and Writers Reservoir India in association with Dev Bhumi Uttarakhand University, Dehradun. Over the next 5 days, we will explore diverse aspects of research, from tools and techniques to innovative thinking, that shape academic excellence and knowledge creation. To formally welcome our gathering, I now invite Dr. Aditi Parekh, Senior Assistant Professor, Department of JMC, ISD Interview University, Jaipur, and Vice President of Writers Reservoir to deliver the welcome address. Thank you, Astha ma'am. Namaskar, good evening, and a very warm welcome to all distinguished guests, esteemed speakers, respected faculty members, and enthusiastic participants joining us from across the country and abroad. It is my privilege and honor to welcome you to the 1 week national workshop titled Research Refined Tools, Techniques, and Thinking, organized by Communication Today, Media Journal, and Writers Reservoir in collaboration with Dev Bhumi Uttarakhand University, Dehradun. This workshop is designed as a space for reflection, refinement, and renewal for researchers, educators, and students alike. Over the next few days, we will explore the evolving landscape of research methodology, engage with practical tools and techniques, and challenge ourselves to think more critically and creatively. We are deeply honored to begin this journey with the presence of our guest of honor, Professor Dr. Ritika Mehra, Vice President, Dev Bhumi Uttarakhand University, whose leadership and vision continue to inspire academic excellence. We are equally privileged to welcome our keynote speaker, Professor Subhash Dhulia, former Vice Chancellor, Uttarakhand Open University, whose pioneering contributions to media education and open learning have shaped generations of scholars. As the great scientist Marie Curie once said, one never notices what has been done, one can only see what remains to be done. This workshop is our collective step toward what remains to be explored, questioned, and understood. I also extend my heartfelt thanks to Professor Sanjeev Bhanawat for his unwavering support of scholarly initiatives and to Team Writers Reservoir, Professor Dr. Ruchi Goswami, Dr. Asta Saxena, Dr. Deepshika Parashar, Ms. Babita Sharma, Ms. Aishwarya Mathur, Ms. Rama Chaudhary, whose tireless coordination has made this event possible. And I also like to thank Dev Bhumi Uttarakhand University for their support. To all our participants, thank you for choosing to be here. May this week be filled with meaningful insights, collaborative spirit, and renewed purpose. I welcome you all to this 5 days event. Thank you. आस्था तुम्हारा माइक अनम्यूट करो. I'm so sorry. Thank you so much, Aditi ma'am, for your kind words. We shall now move forwards to felicitation. It is indeed my pleasure to extend our deepest gratitude to our distinguished dignitaries and esteemed speakers. On behalf of the organizing committee, I warmly present floral tokens of appreciation to you. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Moving forward, it is my honor to welcome our guest of honor, Professor Dr. Ritika Mehra, Pro Vice Chancellor, Dev Bhumi Uttarakhand University, Dehradun. Professor Mehra is a distinguished academician with over 2 decades of experience in teaching, research, and administration. She holds a PhD in computer science and is an expert in machine learning, data mining, big data analytics, and computer networks. With more than 100 research publications in reputed journals, several books to her credit, and many PhD scholars guided under her supervision.
remarkable contributions to academia. Her outstanding work has been recognized through prestigious awards such as Dev Bhumi Educational Excellence Award 2023 and the Teacher of the Year Award 2023. She is also a lifetime member of several professional bodies, including IEEE, AMC, and Computer Society of India. We are honored to have you with us today, ma'am. May I now invite you to kindly address the gathering. Thank you so much, ma'am. Respected Professor Subhash Dhulia, former Vice Chancellor, Uttarakhand Open University, Haldwani, sir. Professor Sanjeev Bhanawat, sir, former Head Center of Mass Communication, University of Rajasthan, and Editor of Communication Today. Professor Ruchi Goswami, ma'am, Professor and Head Department of JMC, Chhatrapati Shivaji Maharaj University. Astha Saxena, ma'am, Associate Professor and Head Department of JMC, Purnima University. And Dr. Aditi Parikh, ma'am, a Senior Assistant Professor. And the distinguished organizers, esteemed colleagues, and dear participants. It's indeed a privilege and great honor for me to join this evening as a guest of honor at this inaugural of 1 week National Online Workshop on Research. Speaking about the Devbhoomi Uttarakhand University, it is one of the leading multidisciplinary university of North India. I just want to tell you, it is situated in the serene foothills of Himalaya of Dehradun. And more than 10,000 students across various disciplines, whether it is engineering, agriculture, journalism, humanities, health sciences, management, lot of students are studying here, and we strongly emphasize in shaping the next generation leaders and responsible citizens from here. I take pride to be part of this vibrant and progressive university. Talking about the workshop, this workshop is not just learning a new skills, but also about unlearning the limitations, embracing the innovations. And as it has been well said, that education is not learning of facts, but training of mind to think. So this workshop is opportunity to each and every one of you to sharpen our thinking while equipping ourselves with tools and techniques that are used for the research purpose. And the theme is quite apt, if I say. And if I talk about, like, I want to extend my heartfelt congratulations to the book launches that would be taken place later on this evening also. And dear participant, I encourage you to wholeheartedly involved in these sessions coming over a week, over a time. Let this workshop not only enhance your technical skills, but know how to expand your intellectual horizons also. I just want to tell you, some years ago, a group of engineering students in a small town decided to study about the problem of water scarcity in our area. Instead of just reading the published articles, they visited the households, spoke to the farmers, spoke how about the water being used and wasted daily. And one evening, while walking back after their survey, they noticed that hand pump leaking continuously into the roadside drain. So it was not a big leak, but when they calculated how much volumes of water, liters of the water has been lost every week from a single pump. So this observation has changed their research focus, I want to tell you. And they designed a low-cost sensor-based device to automatically stop the flow of the tank when the container gets filled. So it was not a high-profile lab-based project. I just want to tell you, when we talk about the research, everyone think about there was a big laboratories to do that research. It is not like that. It is a simple solution that we give to with our real-time experience to this world. So again, I want to say to all the participants, I urge you to engage actively in every session of this workshop. Do not just take a notes. Instead, ask the question, reflect, and apply. So research is a journey. I want to say it is a journey where every time the refinement takes place. I extend my best wishes to all the participants. I congratulate all the organizers for bringing together such
constellation of experts and the scholars to guide this program. I once again thank the organizers for this opportunity and extend my best wishes for grand success of this 1 week long academic research program. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your thoughtful words. Now, every academic endeavor is enriched when its theme is introduced with depth and clarity. To present the theme of the workshop, may I now invite Professor Sanjeev Bhanavat, sir, former head, Center for Mass Communication, University of Jaipur, and editor and founder of Communication Today Media Journal. सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। और इस 7 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय प्रोफेसर सुभाष धूलिया जी, प्रोफेसर दीपिका मेहरा और हमारे टीम के मेंबर्स। जैसा रितिका जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि शोध की अपनी एक विशिष्ट यात्रा है, उसका एक विशिष्ट प्रभाव है। मुझे लगता है शोध वह यात्रा है जो अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाती है। हम नई रिसर्च के समाज में कोई इम्पैक्ट पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने मूल प्रश्न ये है कि जो हम शोध कर रहे हैं क्या उसकी दिशा सही है। हमारी पूरी जो शोध है किस दिशा में रही है। जो देश में न्यूज पॉलिसी का जो है उसमें शोध प्रति काफी चिंता प्रकट की गई है और कहा गया है कि जितनी शोध हो रही है उसकी कितनी राष्ट्रीय नीतियों में और समाज में उसकी उपादेयता है, उसको लेकर चिंता प्रकट की गई है और एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तक बनाने की बात की गई है और उसके माध्यम से ये प्रयास करने का एक आश्वासन या एक इस प्रकार का संकल्प व्यक्त किया गया है कि शोध को हम समाज उपयोगी बनाएं। क्या वो शोध समाज के सवालों के समाधान की दिशा में जा रही है? क्या ये शोध आने वाली पीढ़ियों के लिए नए दृष्टिकोण और नए विचार की कहीं तैयारी कर पाने में सक्षम हो रही है? यही सवाल हमें इस कार्यशाला के आयोजन के लिए प्रेरित करता है। रिसर्च रिफाइंड, कैसे हम हमारी रिसर्च को बेहतर बनाएं और अपनी सोच को बदलने के लिए और शोध को एक नई दृष्टि देने के लिए एक प्रयास किया जाए। शोध के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है। आज देश में न जाने लाखों की संख्या में शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उसकी संख्या कितने जर्नल्स हैं और समय समय पर कभी यूजीसी केयर लिस्ट की बात की जाती है, कभी स्कोपस की बात की जाती है, कभी किसकी बात की जाती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हार्डली 10 से 15% ऐसे शोध पत्र हैं जो समाज के नीति निर्माण में कहीं अपना कोई वास्तविक प्रभाव पैदा कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। प्लुरलिज्म की अपनी प्रॉब्लम है, सतही विश्लेषण दूसरी समस्या है, पुरानी पद्धतियां तीसरी समस्या है और उसकी जो उपयोगिता है उसकी एक अलग चुनौती है। यही कारण है कि हमें विचारों की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो हमारी जो रिसर्च के मेथड्स हैं उनमें आधुनिकीकरण या जो नई पद्धतियां हैं उनको अपनाने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा और हमारे जो डेटा है वो कितने सटीक हैं उसके जो पूरी उसका जो एक सिद्धांत है, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और जो हमारे निष्कर्ष हैं वो कितने प्रामाणिक हैं, उनके संदर्भों को, उनकी प्रामाणिकता को, उसको हमने ध्यान रखना पड़ेगा। ये दौर पूरी तरह से बदल गया है। ये जो शताब्दी है पिछले 5-7 वर्षों में, बल्कि कोविड के बाद का जो दौर है उसने पूरी तरह हमारे शोध के वातावरण को एक तरह से प्रभावित किया है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे बिग डेटा एनालिसिस की बात हो, चाहे मशीन लर्निंग का प्रश्न हो, चाहे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात की जाए, तो अब शोध केवल लैब और लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया, साइंस और जो ग्लोबल हमारा नेटवर्क है उसके साथ ही वो जुड़ा है। ऐसे शोध विश्व के बाजार तक कहीं अपनी उपादेयता या महत्व को स्थापित कर सके। यह कार्यशाला हमारी कोशिश है एक्सपर्ट्स के माध्यम से केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि प्रतिभागियों में वो स्किल विकसित करने की कोशिश करे जो 21वीं सदी के शोधार्थियों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
बहुत सारे जो रिसर्च आते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाए, रिसर्च डिजाइन को कैसे तैयार किया जाए, और उसके एथिक्स और एकेडमिक राइटिंग, बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो सम्मिलित रूप से यदि हम चिंतन मनन अध्ययन करेंगे तो उसका एक समग्र प्रभाव पड़ेगा। आज हमारे इस आयोजन में लगभग 20 स्टेट, देश के 20-21 राज्यों से प्रतिभागी हैं। लगभग अभी तक जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुए 84 के आसपास। तो आप देखिए कितने सारे विद्यार्थियों में जो अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, बल्कि ईस्ट अफ्रीका कंट्री से भी एक जना जुड़ा है, वहां का कोई एक देश है, वो नाम मैं बोल रहा हूँ अभी, तो वहां से भी हमारे साथ रिसर्चर जुड़े हैं जो ये चाहते हैं कि कहीं शोध एक नई दिशा दे पाए। और शोध का जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ग्रुप भी बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड के है। इवन जर्नलिज्म के प्रोफेसर्स हैं उसमें 3, तो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तो बहुत बड़ी संख्या है, और इवन पीजी के स्टूडेंट्स भी इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। अर्थात कहीं ना कहीं शोध के प्रति एक चिंता या शोध के प्रति कहीं गंभीरता, वो झलक हम इस पार्टिसिपेशन के माध्यम से देख सकते हैं। और अब एनईपी में जिस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ा जा रहा है, मैं पिछले 3-4 दिन से पढ़ रहा हूँ, बल्कि 1 सप्ताह हो गया है, किस तरह से यूजीसी ने मैथमेटिक्स और जुड़े हुए सब्जेक्ट पर अपने कुछ जो एक ड्राफ्ट सिलेबस है उसको उन्होंने लॉन्च किया है, और बाकायदा समाचार पत्र उसको फॉलो कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा एक आर्टिकल छापा उसके मेरिट डिमेरिट्स को लेकर के। आज दैनिक भास्कर में छपा है किस तरह से राजस्थान की जो प्राचीन शोध पद्धतियां हैं या प्राचीन जो हमारा गणित से जुड़ा हुआ जो सारी धारणाएं हैं, उन्हें किस तरह से नई शिक्षा पद्धति या जो ये प्रस्तावित सिलेबस है इसमें इसको साथ में जोड़ा गया है। अर्थात इस शोध का मूल यही है कि हम सत्य की खोज करें व्यापक सामाजिक हितों के संबंध। इसलिए मैं इस बात पर स्ट्रेस देना चाहूंगा कि शोध को केवल आप डिग्री तक सीमित नहीं रखें। डिग्री ओरिएंटेड शोध शायद समाज का नहीं कर पाएगी। शोध दृष्टि और दिशा देने की दृष्टि से हो तो शायद उसमें व्यापकता होगी और गांधीर्य होगा, सामर्थ्य होगा। जब विचार शोध के रूप में जन्म लेते हैं तब हमारी नीतियां वो बनती हैं, क्रियान्वित होती हैं, और अधिक प्रासंगिक होगा और अधिक महत्वपूर्ण। सर आपके एंड पे कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। प्रोफेसर सुभाष ने बहुत लंबा अनुभव रहा, उन्होंने के रूप में एक कुलपति के रूप में उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय का नेतृत्व दिया है। प्रोफेसर के रूप उन्होंने एक विश्वविद्यालयों को नेतृत्व दिया है, और इसी के साथ उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद एक न्यूज राइटर्स के आधार पर जिस तरह से एक उपक्रम शुरू किया है, प्रोफेशनल्स और एकेडमिशियंस प्रभावित या उनका ओरिएंटेशन करने के लिए, वो अपने आप में शोध के प्रति उनकी चिंता को प्रकट करता है। वो उम्मीद करते हैं आने वाले इन 5 दिनों के अंदर से संबंधित उन दिशाओं को जानकारी मिलेगी, और प्रोफेसर धूलिया के माध्यम से भी हमें एक मार्गदर्शन मिलेगा। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 3 दशक से प्रकाशित एक जर्नल है, और हमारी कोशिश रही है कि देश भर में होने वाली शोध को हम एक प्रभावशाली मंच दे पाए। छोटा सा प्रयास, हमारी अपनी वेबसाइट है communicationtoday.net, जिस पर आप कम्युनिकेशन टुडे के सारे पुराने अंक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने एक वेबिनार का सिलसिला शुरू किया, 177 वेबिनार्स कर चुके हैं। वो भी शोध की दिशा में ही एक प्रयास है, जिसमें 450 से अधिक एक्सपर्ट्स सहभागिता कर चुके हैं। अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। ये सारे डेलिब्रेशंस हमने अपने YouTube पर अपलोड किए हैं, और अभी हमने शुरू किया है ये कार्यशालाओं और कॉन्फ्रेंसेस का ऑनलाइन मोड के ऊपर एक शुरुआत, जिसके माध्यम से देश विदेश के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कहीं जुड़ पाए। इन्हीं शब्दों के साथ 5 दिन की हमारी ये जो तपस्या है या जो विचार यज्ञ है, ये पूरी तरह से सफल हो, और आप जिन महत्वाकांक्षाओं को, आकांक्षाओं को लेकर के इस कार्यशाला में जुड़े हैं, उनकी पूर्ति हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अगले 5 दिन के सफल उस वैचारिक योगदान की उम्मीद करते हुए आप सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, इतने उत्साह के सक्रिय भागीदारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Thank you so much. Before we move forward, let me also take this opportunity to recall a significant milestone. In the month of May this year,
Communication Today Quarterly Media Journal, and Writers Reservoir successfully organized a 2-day online international conference on digital dynamics, global trends, and challenges. The insights, discussions, and scholarly contributions from the conference were truly remarkable, and we are proud to share that the selected research papers from this global academic gathering has now been incorporated into 2 edited volumes. One is the Navigating Digital Futures, a Global Outlook, and second one is the Digital Shift, Stories of Influence, Identity, and Innovation. These volumes stands as a testimony of the collaboration spirit of researchers, academicians, and practitioners from across the world, and we are delighted to bring them into academic and public discourse. Alongside this, we are also delighted to launch the latest edition of Communication Today, a journal that has been nurturing critical discourse in media and communication for nearly 3 decades now. The July-September 2025 issue, that means volume 29 and issue 3, is now live, carrying forward its proud legacy of excellence. This launch is particularly special to me, as from this issue, I have also joined Communication Today as assistant editor. It is truly an honor to be part of such prestigious and long-standing publication. Please join me in celebrating this proud moment with a virtual round of applause. Now it is the time to highlight our inaugural session, the keynote address. We are deeply honored to have with us Professor Subhash Dhulia Sir, former Vice Chancellor, Uttarakhand Open University. Professor Dhulia is a distinguished academician, researcher, and educational administrator with over 4 decades of experience in media, academics, and journalism. He holds several prestigious positions, including Vice Chancellor of Uttarakhand Open University, Director and Professor at the School of Journalism and New Media Studies, IGNOU, Professor and Course Director at the Indian Institute of Mass Communication, Professor of Culture and Media Studies at Central University of Rajasthan, and Professor and Dean at the School of Creative Arts, Design and Media Studies, Sharda University. Beyond his academic career, he has also been a practicing journalist for over a decade, having worked as an assistant editor and editorial writer at the Times Group of newspaper. He has further contributed as editor of The Communicator and Sanchar Madhyam, quarterly research journals in English and Hindi respectively. His vast experience and deep knowledge have greatly shaped journalism and media education, nurturing both industry professionals and future scholars. Sir, we are privileged to have you with us. May I now invite you to deliver the keynote address. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for your kind words. Professor Ritika Bharadwaj ji, Dr. Sanjeev Bhadawat, कम्युनिकेशन टुडे की जो है उनकी पूरी टीम जो बहुत मेहनत करती है और बहुत अच्छा पब्लिकेशन जो है निकाल रहे हैं, और तमाम पार्टिसिपेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स। ये जो वर्कशॉप है ये रिसर्च पे है कि कमीशन रिसर्च पे है? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। Sir, it is on research refined to techniques and thinking. Yes. Anyway, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रहा है, तो रिसर्च का एक ओवरव्यू तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और मेरे एग्जांपल्स जो है वो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड होंगे, क्योंकि बाकी स्ट्रीम्स पे मेरा बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क तो मैंने रिव्यू नहीं किया है। तो मैं थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ, और चूंकि इस वर्कशॉप पे देश भर के लोग हैं, तो अगर किसी को कहीं कोई कंफर्ट लेवल ना हो, जस्ट फील फ्री टू इंटरप्ट मी एंड आस्क मी इन इंग्लिश, आई विल आंसर इन इंग्लिश। तो सबसे पहले तो हम रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या है? मतलब रिसर्च का मतलब है कि क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। एक हम नया ज्ञान जो है वो सृजित करते हैं, और जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें हम लोग एक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो उसका प्रीमाइस ही है कि हम लोग पूरा रिव्यू करते हैं कि क्या क्या उस फील्ड में काम हुआ है, क्या क्या नॉलेज एग्जिस्ट करता है, और कौन से गैप्स हैं, कौन से वैल्यूज हैं जहाँ हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक रिसर्च का बहुत बड़ा जो है योगदान है। रिसर्च जो है वो
मतलब रिसर्च एक ऐसी चीज है जो कि एक देश की, एक राष्ट्र की जितनी भी पॉलिसीज होती है उसे उस पर इन्फ्लुएंस करना चाहिए। अगर आप जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन में हैं, आपके रिसर्च को जो है वो जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन इस फील्ड में होती है उसका ही उस पर इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि आपके रिसर्च के जो इनपुट्स हैं उससे उनको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद मिलेगी। इसी तरह सोशल साइंसेस के दूसरे जो भी फील्ड है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, रिसर्च की ये रेलेवेंस बहुत जरूरी है। अब मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के जो है वो एग्जाम्पल्स पे भी आऊँगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के रिसर्च पे मैं थोड़ा जुड़ा रहा हूँ काफ़ी, जो है जो पीएचडी होती है। इकोनॉमिक्स रिसर्च पे बहुत बड़ा एक स्कोप है कि सरकार की आर्थिक नीतियों को कैसे वो मजबूती दें, कैसे वो सरकार की मदद करें, एक जो है प्रिग्मेटिक और रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकें। आज जब इकोनॉमिक फील्ड में इतने जो है अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और पिछले जो 1991 से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू हुए, आज तक जो पूरा इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज हुआ है, मैंने पाया कि इसको इस तरह से किसी ने एनालाइज नहीं किया। जो पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई, पॉलिसीज में डिविएशंस आए, अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में फेल हुए, इनको कोई एड्रेस करता। मतलब एक बहुत बड़ी चीज है कि इकोनॉमिक्स में जो है वो 91 के बाद एक मैसिव जो है मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक तौर पर इमर्ज किया। आज इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की है। ये सब चीजों के बारे में हम खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है कि हमारे देश में आज तक भी 70-80% लोग, जो एक नई इकोनॉमी है, जो एक एफ्लुएंट इकोनॉमी है, जो एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इकोनॉमी है, उससे बाहर है। मतलब इसका एग्जाम्पल है कि देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी 80% लोग, देश 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे डिपेंडेंट है। तो जो प्रॉस्पेरिटी आई है वो इंक्लूसिव नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा एरिया है मतलब हमारे लिए, जिसपे कि एकेडमिक रिसर्च का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। और एकेडमिक रिसर्च को सरकार को बताना चाहिए कि इन इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए। अभी तक मेरे नॉलेज में जितनी भी रिसर्च इकोनॉमिक्स के फील्ड में हुई है, हो सकता है कि मेरी जानकारी अधूरी हो, लेकिन मैंने किसी रिसर्च में नहीं पाया कि जो है इन इश्यूज को जो है एड्रेस किया जाता है। तो अब बात आते हैं हम जैसे जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन रिसर्च की, उसमें भी बहुत बड़ा क्राइसिस है। एक तो जो है वो जितनी भी मैंने रिसर्च, जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के काफ़ी रिसर्च वर्क मैंने इवेलुएट करे हैं, काफ़ी पीएचडी थीसिस मैंने इवेलुएट की है, मैंने पाया कि उसमें बड़े न्यूट्रल किस्म के टॉपिक जो है वो चूज किए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने इस बीच कम्युनिटी रेडियो पे बहुत रिसर्च हो रही है। मतलब कम्युनिटी रेडियो के बारे में मैंने स्टडी की है। इग्नू में जब मैं था तो हमने कम्युनिटी रेडियो को बाकायदा कोर्स डिजाइन किया था और कम्युनिटी रेडियो का हम लोगों ने थॉरली स्टडी किया था। बट अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी रेडियो इज ए फेल्ड स्टोरी। पता नहीं वो रिसर्च कहाँ से आती है जो कहते हैं कि एम्पावरमेंट हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, कम्युनिटी रेडियो का ये रोल है, कम्युनिटी रेडियो का ये रोल है। कम्युनिटी रेडियो का जितनी स्टडी मैंने की है, काफी स्टडी मैंने की है। एक तो जितने भी एचपी इंस्टीट्यूशंस में कम्युनिटी रेडियो है वो वर्चुअली कैंपस रेडियो है। कम्युनिटी रेडियो का जो बेसिक कंसेप्ट है कि इट हैज टू बी रन बाय द कम्युनिटी, कंटेंट हैज टू बी क्रिएटेड बाय द कम्युनिटी एंड इट्स फॉर द कम्युनिटी। आप उसकी प्रोग्रामिंग का भी कम्युनिटी रेडियो की किसी ने ऐसे एनालाइज नहीं की कि जो कम्युनिटी रेडियो का कोर कंसेप्ट है उससे वो कितना मैच कर रही है। कम्युनिटी रेडियो वही कामयाब है, मतलब
फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत कम रेडियो स्टेशन की है। फाइनेंशियल वायबिलिटी उन्हीं की है जिन्होंने थोड़ा अपने आप को कमर्शलाइज किया है। तो कम्युनिटी रेडियो के मॉडल पे बहुत काम होना चाहिए। लेकिन कम्युनिटी रेडियो के मॉडल पे रिसर्च बहुत हो रही है, लेकिन जो कोर इश्यू है उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है मैंने देखा। इसी तरह एक बहुत बड़ा न्यूट्रल एरिया है, जैसे कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, इस पे रिसर्च हो रही है काफी, जेंडर इश्यूज पे रिसर्च हो रही है। लेकिन आज हमारा जो मीडिया है वो इतना पावरफुल है, मीडिया हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसे कोई रिसर्च देखने को नहीं मिलती है जो कहना चाहिए कि उनकी प्रोग्रामिंग को हिला के रखे। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज मतलब लो, जीरो नहीं है तो लोएस्ट है। मतलब लोग आज जर्नलिज्म का प्रोफेशन जो है वो एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं रह गया। एक जर्नलिस्ट का समाज में रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। अगर एक टेलीविजन जर्नलिस्ट किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में जाए तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं। हम भी जर्नलिस्ट थे तो हम लोग कहीं जाते थे, लोग बड़े क्यूरियस होते थे, उनको लगता था कि हम बहुत नॉलेजेबल है और हमको पूछते थे कि क्या हो रहा है देश में, क्या होगा, ये तब भी क्यूरियोसिटी होती थी कि लंदन लोग। लेकिन आज जो है वो एक जर्नलिस्ट की जो रेपुटेशन समाज में वो लोएस्ट स्टेप पे है। क्रेडिबिलिटी का एक सीवियर क्राइसिस है। लेकिन आज तक मेरी निगाह में कोई ऐसी स्टडी नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिस और न्यूज मीडिया को बताया हो कि आप कहाँ खड़े हैं और आपकी स्थिति क्या है और आपको जो है करेक्टिव मेजर्स जो है लेने चाहिए। अगर आज जो है हम देश के 10 प्रोफेशंस को आइडेंटिफाई करें, जो पहले एक बार लंदन में स्टडी हुई थी, 10 प्रोफेशंस को आइडेंटिफाई किया था और कहा था कि कौन से मोस्ट रिस्पेक्टेड है और कौन से लीस्ट रिस्पेक्टेड है। उसमें लीस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन आए थे जो होना ही था, और हाईएस्ट रिस्पेक्टेड में डॉक्टर जर्नलिस्ट हुआ करते थे। अगर आज इस 1 to 10 के स्केल्स में आप जर्नलिज्म को रखें अगर, तो मेरा ख्याल है कोई रिसर्च फाइंडिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से मैं कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म का स्थान जो है वो 7 और 8 होगा। लेकिन इस क्रेडिबिलिटी पर कोई रिसर्च हमने नहीं की है, जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएटिंग रिसर्च है। तो ये है कि हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो कई बार जो है थोड़ा मेरी क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, और मैंने काफी कोशिश की कि कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा जो है वो रिसर्च में मिला नहीं। मैंने भी मेरे क्रिटिकल इवैल्यूएशन पे जो क्या तमाम रिसर्च स्कॉलर्स है, फैकल्टी है, मैं उनका रिस्पॉन्स जरूर चाहूँगा। थोड़ा टाइम दीजिए कि हमारा इंटरेक्शन हो। मैं चाहूँगा मेरे को क्वेश्चन करे, मुझे चैलेंज करे कि मेरे कंक्लूजन सही नहीं है। कई बार रिसर्च जो हो रही है, बहुत कम रिसर्च ऐसी है कि जो बुक फॉर्मेट में मार्केट में आ रही है। अगर कोई रिसर्च मार्केट में आ भी रही है अगर, तो कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रही है। ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट जो है या पॉलिसी मेकर्स जो है उन बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो मतलब रिसर्च ऐसा हो गया कि जैसे कि वो डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा है, कंटेंट एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और डिग्री ड्रिवन ज़्यादा है, मतलब डिग्री हासिल करने की रिसर्च की जा रही है। अब हमारी रिसर्च ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हमने रिसर्च की और वो सिर्फ लाइब्रेरी के शो बढ़ा रही है, उसने कोई इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं किया। वो सिर्फ लाइब्रेरी में है, जो फ्यूचर रिसर्च करेंगे वो आपकी थीसिस को रिफर कर लेंगे, लेकिन उसका कोई ना ऑडियंस था, ना किसने उसको पढ़ा, ना उसने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया। एक ये बहुत बड़ा सवाल है जिसपे कि हमको सोचना चाहिए, जो रिसर्च के फील्ड में है, कि कैसे जो है वो हम इसको जो है वो रेलेवेंट बनाएं ताकि ये मीडिया प्रोग्रामिंग को इन्फ्लुएंस कर सके। मतलब रिसर्च जो है वो कमीशन रिसर्च की जब मैं बात करता हूँ, इवन इकोनॉमिक्स के फील्ड में, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में, रिसर्च तो एक वॉच डॉग है हमारी पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, कल्चरल लाइफ में। जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं, जो भी डिविजन्स हो रहे हैं,
रिसर्च वो वॉचडॉग है जो इनको मॉनिटर करता है और देश को, समाज को, सरकार को बताता है कि क्या 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 ट्रेंड से क्या हो रहा है और कहाँ करेक्टिव मेजर्स की जरूरत है। कहीं ना कहीं रिसर्च हमारे देश में ये भूमिका अदा करने में जो है बहुत सफल नहीं हो रही है, जो मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो ये चीजें जो है वो ऐसी है कि हम कैसे ऐसी रिसर्च करें जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, मतलब जो सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए ना हो, एपीआई स्कोर के लिए ना हो, सिर्फ लाइब्रेरी को शोभा न बनाए, बल्कि मार्केट प्लेस में जाए, पब्लिक डोमेन में जाए, वहां चर्चा के विषय बने, वहां उन पर डिबेट हो। एक्चुअली मैं, मतलब अब तो हम बहुत आगे आ गए, लेकिन बहुत पहले मैं लखनऊ में जर्नलिस्ट था। तो लखनऊ में हमने एक कॉलम शुरू किया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिसको पीएचडी अवार्ड होती थी, हम उसकी पीएचडी को एक न्यूज फॉर्मेट पे अखबार में छापते थे। ये रिसर्च हुई है, इसकी फाइंडिंग्स ये है। एक रिसर्च थीसिस जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में किसी ने लिखी थी, वो इकोनॉमिक्स पे थी, मतलब जो है, जो याद नहीं थे क्या था उसका। तो उसका टाइटल था कि रूट्स ऑफ पॉवर्टी इन बुंदेलखंड। एक मुझे याद है अभी तक रिसर्च, और एक रिसर्च थी जिसमें कि रूट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड पॉवर्टी, ऐसा कुछ उसके टाइटल थे। इन दोनों रिसर्च, पीएचडी रिसर्च पे हमने अखबार में एक न्यूज रिपोर्ट छापी थी। जिस अखबार में काम करता था, अमृत प्रभा डेली था, और उन दोनों रिपोर्ट से बहुत चर्चा, मतलब इन दो रिसर्च रिपोर्ट ने इम्पैक्ट क्रिएट किया था। हमको ये लगा ये जो जर्नलिस्ट की ये न्यूज वर्दी है, इनकी एक समरी अखबार में छपनी चाहिए और कॉमन लोगों को भी बात पहुंचनी चाहिए कि क्या हुआ, मतलब। और दोनों रिसर्च बहुत रेलिवेंट थी, इस पर बहुत चर्चाएं हुई, सरकार में भी, मीडिया सर्कल्स में भी। आशा ये है कि इस तरह की जो है वो जो है हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं जो है हम सेफ टॉपिक पे क्यों चल रहे हैं, मतलब जो सेफ है, जिसमें ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कम्युनिटी रेडियो को पकड़ लीजिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को, जेंडर इश्यूज को, बड़े सेफ टॉपिक है जिससे बहुत कंफर्म नहीं करना है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये बड़ी टेंडेंसी एक बन गई है कि आप सेफ टॉपिक लीजिए। इवन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जो रिसर्च होती है, वो बेसिक जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसीज है, जो कम्युनिकेशन के फील्ड में हुआ, उसको कभी चैलेंज नहीं करती। मतलब आईएमसी के एक डायरेक्टर थे लक्ष्मण राव, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पे उनकी एक रिसर्च थी जो एक बुक फॉर्म में अवेलेबल है अभी भी। उनकी रिसर्च सिर्फ ये थी कि एक गांव जिसका मीडिया एक्सपोजर बहुत हाई है और एक गांव जिसका मीडिया एक्सपोजर बहुत लो है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी थी वो। और उसमें जो है वो मीडिया का जो पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है इन दो गांवों में, मतलब इतनी सिंपल स्टडी थी, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन आज भी प्रोफेसर लक्ष्मण राव की किताब जो है वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के फील्ड में क्लासिक्स के रूप में मानी जाती है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में मैंने कोई ऐसी स्टडी मतलब नहीं देखी जो इस तरह का कोई इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टडी बड़ी स्ट्रू टाइप से, बड़ी रूटीन टाइप की। हमने आज तक ये देखा ही नहीं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। हमने बहुत कॉन्क्रीट डेटा कंपाइल नहीं किया है। हमने लोगों के जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ है उनका, उन पे क्या इम्पैक्ट इसका हो रहा है, जो रियल टर्म में एक ऐसे रिसर्च है जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इन फील्ड को हमने जो है वो नहीं छुआ है। हमने जो है इन फील्ड को कभी चूज नहीं किया है। रावत जी मुझे बता दीजिए, समय की वार्निंग दे दीजिएगा। हाँ सर, 10 मिनट बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट और। हाँ जी। तो हम कन्फ्रंट क्यों नहीं करते, हम सेफ टॉपिक पर ही रिसर्च क्यों कर रहे हैं, सेफ और आसान टॉपिक पे जो है हम मीडिया को जो है वो ग्रिल क्यों नहीं करते, हम मीडिया को चैलेंज क्यों नहीं करते हैं, मीडिया को जो
जो है वो क्वेश्चन क्यों नहीं करते। आज हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो भी न्यूज प्रोग्रामिंग है उसमें इतने डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं कि पूछिए नहीं। टेलीविजन मीडिया बिल्कुल ही एक सॉलो एंड लॉन्ग हो चुका है। उस पर रिसर्च क्यों नहीं होती है। फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन से भरा पड़ा हुआ है मीडिया। पहले हम कहते कि फेक न्यूज जो है वो सोशल मीडिया में ही होती है, लेकिन अगर हमारी न्यूज मीडिया की हम जो हिस्ट्री देखें अगर, तो एक मिशन से लेके फिर वो इंफॉर्मेशन पे आया, फिर वो एंटरटेन में आया, और आज जो इवन फेक न्यूज में इन्वॉल्व है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी घटना होती है, मैंने देखा कोई बड़ी घटना, तो विद इन 6 months उस पर कम से कम 5-6 किताबें आ जाती हैं उसको एनालाइज करते हुए। मतलब 9/11 जब अमेरिका में हुआ था तो भयंकर नेशनल हिस्ट्री पैदा हो गया था। कई न्यूज एंकर्स ने न्यूज रूम में अमेरिकन झंडे लगाए थे। विद इन 6 months कम से कम 5-6 बुक्स आई उस पर, इस पूरे ट्रेंड को क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने कहा कि मीडिया ने अपनी ऑब्जेक्टिविटी और बैलेंस बिल्कुल खो दिया था और मीडिया का पूरा एक हिस्टोरिकल नेशनलिज्म में इन्वॉल्व था। अब चैलेंज किया उन्होंने मीडिया का कवरेज को, उसका इम्पैक्ट हुआ। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारे मीडिया कवरेज के इतिहास की एक शर्मनाक फेज है, जब कई बड़े बड़े रेपुटेड न्यूज चैनल्स ने, छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स ने, बड़े बड़े एस्टैब्लिश सैटेलाइट चैनल्स ने ये खबरें दी कि कराची पोर्ट को हमारी नेवी ने ध्वस्त कर दिया है, हमारी फौज इस्लामाबाद के पास पहुंचने वाली है। तमाम इस तरह की खबरें उन्होंने दी जो पूरी फेक स्टोरीज थी। फेक वीडियोज दिखाए, मतलब वो अरब गाजा के जो है वो एनकाउंटर्स के, इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट्स के पुराने वीडियो पिकअप किए, उनको इससे लेट करके दिखाया, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने दिखाया। और हमारा मीडिया का कवरेज और सरकार क्या कह रही थी उसके पीछे बहुत बड़ा अंतर था। जब भी एक नेशनल क्राइसिस होता है, हमें उम्मीद करनी चाहिए हमको कि मीडिया का एक रोल कंस्ट्रक्टिव होगा, मीडिया का रोल डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। हमारी सरकार रोज एक प्रेस ब्रीफिंग होती थी जिसमें आर्मी के ऑफिसर्स होते थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी होती थी। आपको अगर याद होगा तो उसका टोन क्या होता, उसमें कोई एग्रेशन नहीं होता था, बड़े फैक्चुअल ढंग से रिपोर्ट की जाती थी, कोई रेटोरिक्स, कोई लफाजी उसमें नहीं होती थी। लेकिन अगर उसी स्पिरिट को हम मीडिया कवरेज से कंपेयर करें तो आसमान पाताल का फर्क। ऐसे मौके पे आप सरकार के एजेंडा को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। एक जब इराक वॉर हुआ था, CNN लाइव कवरेज वहां से कर रहा था, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी इंटेलिजेंस और अपने सोर्सेज से जो है वो इंफॉर्मेशन बाद में मिलती थी, CNN इंफॉर्मेशन पहले देता था। तो इसमें पाना गया कि CNN इज ए ड्राइविंग फोर्स, मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन मेकिंग को CNN इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी तरह से अगर मीडिया का कवरेज सिंदूर ऑपरेशन जैसे इशू पे बहुत हिस्ट्रिकल हो, अगर आप एक केस में एक बहुत ही हिस्ट्रिकल नेशनलिज्म डेवलप करें तो सरकार को प्रॉब्लम हो जाती है, सरकार प्रेशर में आती है। अब कैसे सरकार जो है हार्डकोर पॉलिसी डिसीजंस को और इस तरह के हिस्टेरिकल मास सेंटिमेंट्स को कंबाइन करे। तो मीडिया का जो रोल था इसमें जो है वो इनका फेक न्यूज, इनका एक्सट्रीमिज्म, इनका जो है हिस्टीरिया, इस पर आज तक जो है वो मतलब आई मे बी इग्नोरेंट, लेकिन इस पर मैंने कोई ये इशू है जिसपे रिसर्च होनी चाहिए, मतलब है ना। जो प्रोग्रामिंग के नेचर है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की, जो इमर्जिंग सिनेरियो है, मतलब जो है वो डिजिटल मीडिया का आने के बाद एक नया लैंडस्केप जो है डेवलप हो रहा है। तो ये इतने बड़े इश्यूज हमारे सामने हैं,
लेकिन हम रिसर्च कर रहे हैं कम्युनिटी रेडियो पे। ये पैराडॉक्स जो है वो थोड़ा समझ से परे है। कहीं ना कहीं जो है वो मतलब मीडिया एक वॉच टॉक ऑफ डेमोक्रेसी ट्रेडिशनली कहा जाता रहा उसको, लेकिन एकेडमिक्स जो मैंने पहले ही मेंशन किया, एकेडमिक्स वॉच टॉक ऑफ द वॉच डॉग। एकेडमिक्स रिसर्च को मीडिया पे नजर रखनी चाहिए। एकेडमिक रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो मीडिया की प्रोग्रामिंग को इन्फ्लुएंस करे, जो उनको बताए कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं और आपके बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है। कहीं ना कहीं जो है वो उसको हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं जो है। आज एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं। मतलब नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, एआई आ रही है, और बहुत कहना बहुत डिफिकल्ट है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में क्या फेज होगा। लेकिन रिसर्च एक ऐसी चीज है, फाउंडेशन एक ऐसी नॉलेज है जो कि कभी कभी उसकी रेलेवेंस हमेशा उतनी बनी रहेगी। बात है कि टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एआई का इन्वेंशन करते हैं, लेकिन वो एआई का इन्वेंशन करते हैं, वो एआई के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को जो है वो एनालाइज नहीं करते हैं। यहाँ रोल होता है सोशल साइंसेस का। सोशल साइंसेस जो फील्ड है, जर्नलिज्म कम्युनिकेशन जो फील्ड है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स से, सोशल साइंसेस को टेक्नोलॉजी का इवैल्यूएशन करना जा रहा है, इसकी फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है। तो ये तमाम चीजें ऐसे रिसर्च के जिनको हमने करना चाहिए। रिसर्च को जो है वो एक ब्रिजेस क्रिएट करने चाहिए पॉलिसी मेकर्स से, और इंडस्ट्री है, जर्नलिस्ट है, दूसरे फील्ड में भी ऐसे प्लेयर्स है मतलब, और सोशल साइंसेस के फील्ड में भी कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशन जरूरी है कि रिसर्च जो है वो पॉलिसी मेकर से इंटीग्रेट करे, इकोनॉमिक्स से इंटीग्रेट करे, और तब जाकर के एक मीनिंगफुल रिसर्च को जो है कंसेप्चुलाइज किया जा सकता है। मीडिया के फील्ड में आई डोंट नो, लेकिन हमेशा जो है वो मीडिया एकेडमिक्स पता नहीं क्यों इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब न्यूज रूम ऑपरेशंस के बारे में कभी जानना नहीं चाहते हैं, इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं। टीचिंग भी जो है वो भाई जब तक आप 3 कंपोनेंट है, मतलब एक रिसर्च, एजुकेशन है, रिसर्च और ट्रेनिंग है। एजुकेशन का मतलब यू इम्पार्ट नॉलेज, ट्रेनिंग का मतलब है यू इम्पार्ट स्किल्स, और रिसर्च का मतलब है यू क्रिएट न्यू नॉलेज। ये तीनों कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन है वही एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। इन कहीं ना कहीं ये चीजें मिसिंग है। मतलब एकेडमिक्स जो है वो, मैं एकेडमिक्स में जो है बहुत, मैं 13 साल जर्नलिस्ट रहा, बाकी 30 साल एकेडमिक्स में रहा, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटीज मैंने देखी है इंडस्ट्री से लाइव को इंटरेक्शन रहा। मैं आईएमसी में, तो आईएमसी में जब हम लोग थे तो हमारा इंडस्ट्री से लाइव इंटरेक्शन रहता था, लेकिन जितनी दूसरी यूनिवर्सिटीज में देखा है इंडस्ट्री से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं। तो इंडस्ट्री एकेडमिक का इंटरेक्शन नहीं होगा तो मीनिंगफुल और इम्पैक्ट क्रिएटिंग रिसर्च नहीं हो पाएगी। बट अनफॉर्चुनेट मुझे पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि हमने एक न्यूज राइटर्स .in नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें काफी सीनियर जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, और मैंने उसको लॉन्च इसलिए किया कि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में और एकेडमिक्स में, तो मुझे मालूम था कि एकेडमिक्स में इंडस्ट्री के इनपुट्स की सीमाएं क्या है। तो उन गैप्स को भरने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म कोई बिजनेस वेंचर नहीं था, कुछ नहीं था, मॉडेस्ट हम लोग एक फी कलेक्ट करते हैं जो कि खर्चे करने के लिए होती है। मेरा पूरा मोटिवेशन ये था कि हमने जब इतना अर्न किया लाइफ में, 40 ईयर्स में हमने मीडिया के इंडस्ट्री के इन्स एंड आउट जानते हैं, एकेडमिक के इन्स एंड आउट जानते हैं, तो अब इस स्टेज में आके, हमारे स्टेज में जाके लेट्स गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी आल्सो। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनका ओरिएंटेशन करें। लेकिन मैंने पाया कि हमारे प्रोग्राम्स में फैकल्टी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। इंडस्ट्री के लोग आते हैं,
स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन फैकल्टी पता नहीं उसको लेके उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बात है कि एकेडमिक्स एक पैशन है, आपको एक पैशन के साथ एकेडमिक्स में रहना चाहिए। अगर आप एकेडमिक्स को सिर्फ जो है वो एक सरकारी नौकरी की तरह लें, इनोवेशंस को लेके डिफरेंट रहे, चेंजेस को लेके डिफरेंट रहे, हर साल एक सब्जेक्ट को एक ही तरह से पढ़ाते रहे, कोई अपडेटिंग ना करे, मतलब जो है, तो इन सब चीजों से हमको ओवरकम करना चाहिए। तो जस्ट सोच कि मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, एंड मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग मुझे चैलेंज करें, मुझसे डिसएग्री करें, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी जो नॉलेज है, वो जो भी मेरा एक्सपोजर रहा है, जो पीएचडी थीसिस में एवेल्युएट करता हूँ, उसके बेसिस पे है। और जाहिर है कि मेरी एक्सेस जितना रिसर्च को रही होगी उसकी लिमिटेशंस हो सकती है, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ फॉर्मुलेशंस इनएडिक्वेट हो सकते हैं, तो मैं आपसे जरूर इस बारे में सुनना चाहूँगा। थैंक यू। Thank you so much, sir, for those enlightening thoughts that will surely inspire us to embark on this 5-day academic journey. I would now take this opportunity to present a token of gratitude to our esteemed guest. May I now request keynote speaker Professor Subhash Dhulia, sir, former Vice Chancellor of Uttarakhand Open University, to kindly accept our memento and certificate. I hope you are able to see the screen. Yes, thank you. Thank you so much, sir. Thank you, thanks a lot. I would also take this opportunity to present a memento to our guest of honor, Professor Dr. Ritika Mehra, ma'am. Thank you so much, ma'am, for joining today. Now, to conclude our today's inaugural session, I request Deepshikha Parashar, Assistant Professor. Can we have some questions briefly? Pardon, sir, I can't hear you. Can we have some questions briefly? Some comments from the audience? Yeah, if anybody has some questions, please chat box or unmute yourself and you can ask. Because I made so many controversial and debatable statements, so someone should react on them. No? Yeah, anybody who have questions, we can take the questions right now. Anna sir, would you like to add something to it? मेरे ख्याल अपना समय भी हो रहा है 6:30, तो अभी अपन इसको, क्योंकि हार्डली 5 मिनट रह गए हैं सर। चलिए, मैंने इन सब लोगों की पीएचडी को क्रिटिसाइज किया और अपने पीएचडी को डिफेंड नहीं कर रहे, तो क्या किया जाए? तो चलिए, ठीक है। Thank you very much, Sanjay. It was a really pleasure to join you for this interaction. My best wishes. Yeah, thank you so much, sir. But we'll also have a official vote of thanks, which will be delivered by Dr. Deepshikha Parashar. She is Assistant Professor Selection Grade in the Department of Political Science at ISD University. Deepshikha, ma'am. Namaskar, everyone. As we draw towards the closing of inaugural session of our national workshop, Research, Refine, Tools, Techniques and Thinking, I wish to extend my heartfelt gratitude to all who have made this movement possible. Our deepest thanks goes to Professor Subhash Dhulia, former Vice Chancellor of Uttarakhand University, for your thought-provoking keynote address. Your reflection on the evolving landscape of research and its ethical dimension have set a powerful tone for the days ahead. We are profoundly honored by the gracious presence of our guest of honor, Professor Ritika Mehra, Vice President, Devbhoomi Uttarakhand University. Ma'am, your words reminded us that the research is not merely an academic endeavor, but a sole commitment to truth, transformation, and societal progress. We are equally grateful to Chief Patron Mr. Sanjay Bansal, Patron Professor Sanjeev Bhanawat, and Mr. Aman Bansal, whose unwavering support continues to nurture platforms for meaningful academic dialogues and innovation. I would also like to acknowledge the organizing team of the workshop, Chairperson Professor Bhavna Goyal, Convener Dr. Ruchi Goswami, Organizing Secretary Dr. Astha Saxena, Dr. Aditi Parekh, and members Dr. Vikram Singh Rautela, Ms. Babita Sharma, Ms. Aishwarya Mathur, and Ms. Rama Chaudhary. Your tireless efforts, behind the scenes commitment, attention to the details, and collaborative spirit have made today's event possible.
And finally, to all our participants, thank you for bringing your curiosity, energy, and openness to learn. Your engagement and willingness to share perspectives will make this workshop truly enriching in the days ahead. Let us carry forward the spirit of inquiry with the timeless words of Carl Sagan: somewhere something incredible is waiting to be known. With this, I thank you all once again for your presence and commitment. We look forward to an engaging, enlightening, and rewarding week ahead. Thank you so much. Thank you so much, Deepshika ma'am. Now I request everyone to kindly turn on their camera so that we can have a group photograph, and then we'll start with the session.